Namaskar everyone. Children, today we are going to start the topic legislature chapter 5, and in this chapter we will see about the second organ of government. As in the previous classes, in the previous chapter also we have seen there are the three parts of government. Horizontal division क्या होता है? Executive, legislature and judiciary. So executive we have studied in the first part. हमने देखा in world various type of executives are existing: presidential, semi-presidential and parliamentary. So today we are going to discuss about the parliamentary form of government, जो कि हमारी बायकैमरल लेजिस्लेचर भी कहलाता है. इसका मतलब होता है यहाँ पे हाउसेस कितने हैं? 2 हैं. तो वी आर हैविंग 2 हाउसेस एट द सेंट्रल लेवल एंड द हाउसेस नेम्स आर लोक सभा एंड Rajya Sabha. These two are the main houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and the particular institution that is called Parliament. Parliament कहलाती है लोक सभा और राज्य सभा के जो हाउस हैं उनको मिलाकर. Now we can see the differentiation in that. उनके बीच का differentiation हम देखें तो क्या देखेंगे हम कि जो लोक सभा है that is the lower house. Lok Sabha is going to be called the lower house with the members of 545. कितने मेंबर हैं? 545 and it is called the lower house. And the upper house is राज्य सभा with 250 members. तो राज्य सभा में कितने मेंबर हैं? 250. So लोक सभा the member of Lok Sabha are more than the members of Rajya Sabha. And one more thing is there, in Lok Sabha the people are going to be elected directly. जो इलेक्शन होता है, जो वोटिंग होती है, उससे लोअर हाउस जो लोकसभा है उससे डायरेक्ट इलेक्शन होता है. लोग डायरेक्ट वोट कास्ट करते हैं किसके लिए? लोकसभा के लिए. देन अपर हाउस क्या है? राज्यसभा. 250 मेंबर्स होते हैं और अगर उनका हम सब डिवीज़न करें तो 238 को स्टेट लेजिस्लेचर के लोग जो एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं and 12 are going to be nominated by the president in which 2 are the Anglo-Indians. जब हमने president के functions of powers को पढ़ा था तो one of the function was there, the president can nominate the 12 people in the Rajya Sabha from the various fields, चाहे वो literature से हो, चाहे वो art से हो, sports से हो, music से हो या Bollywood से हो, they can nominate. So in such a manner the composition of Lok Sabha and Rajya Sabha is done. Lok Sabha 545 members and Rajya Sabha having 250 members. So this is the composition of parliament. And if we see कि अब लोक सभा से क्लास में मॉनिटर होता है. मॉनिटर यूज टू सी कि क्लास में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है नहीं हो रही, बच्चे प्रॉपर डिसिप्लिन में बैठे नहीं बैठे, क्लास के इशू को सॉल्व करना, उनको प्रॉपर रन करे क्लास. तो लोकसभा में भी क्या होता है? एक हेड होता है हु इज कॉल्ड स्पीकर. क्या कहलाता है वो? स्पीकर कहलाता है. और इन राज्यसभा व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमने क्या देखा था कि जो चेयरमैन होते हैं, जो हेड होते हैं राज्यसभा के, वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. सो ऑलवेज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द राज्यसभा. सो इन सच अ मैनर we can see Lok Sabha and Rajya Sabha. These are the 2 houses of parliament. Lok Sabha is called the lower house with 545 members and Rajya Sabha that is called the upper house with 250 members. Election of Lok Sabha is going to be done directly. Directly election हो रहा है. राज्य सभा के लिए इलेक्शन इनडायरेक्ट है और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी कि जो लोकसभा के हेड होते हैं इज कॉल्ड स्पीकर एंड द हेड ऑफ राज्यसभा इज कॉल्ड द चेयरमैन, जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. सो एक बार वी विल हैव क्विक रिविजन फॉर दैट. देखिए यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बायकैमरल लेजिस्लेचर है, 2 हाउसेज है. कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा. लोअर हाउस लोकसभा है, अपर हाउस राज्यसभा है. So many students are getting confusion which is the lower house, which is the upper house. Always remember lower house is Lok Sabha where the direct elections are there. Upper house is Rajya Sabha where the 250 members will be there.
जो इलेक्टेड होते हैं, जिसमें से 238 लोग जो होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, मीन्स MLAs, and 12 members are going to be nominated by the president, and two among these 12 are the Anglo-Indians. लोकसभा के जो ऐड होते हैं कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं, एंड राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वो आपके इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया, कि किस तरह से हमारा ब्रॉडली हम को कोई पूछता है कि लेजिस्लेचर में क्या होता है, वी कैन से इजीली देयर आर 2 हाउसेस, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, 545 मेंबर्स लोकसभा, 250 मेंबर्स राज्यसभा, 12 members nominated by the president, and 238 by the state assemblies. Head of Lok Sabha is speaker, head of Rajya Sabha is chairman, who is the vice president of India. इतना कोई भी आपको पूछे तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको बिल्कुल अच्छे से इस बात को लर्न होना चाहिए. द थिंग्स मस्ट बी कैप्ट इन योर माइंड कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज द पावर्स ऑफ लोकसभा. अब लोकसभा क्या करती है, उसके पावर्स क्या हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या है. देखिए आप, लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बन रही है? क्योंकि इसके मेंबर्स राज्यसभा से ज़्यादा हैं. क्या करेगी फिर ज़्यादा हैं तो? मेक लॉज ऑन मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट. हमने क्या कहा था? हमारी 3 लिस्ट हैं. कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट, और फिर कंकरेंट. सो हु इज सपोज टू मेक द लॉ ऑन द यूनियन लिस्ट? लोकसभा. एंड कंकरेंट लिस्ट ऑल्सो, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें लोकसभा और जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं वो लॉ बनाते हैं. देन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स. जो भी मनी और नॉन मनी बिल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? लोकसभा. बिकॉज दे आर हैविंग द प्लेंटी ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे इसके मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनको इंट्रोड्यूस करने का काम होता है लोकसभा का. तो क्या कर रही है लोकसभा? कि मनी एंड नॉन मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस कर रही है. देन कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस. अब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, ये तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस रखते हैं. हमने देखा था कि दे यूज टू कीप चेक एंड बैलेंस ऑन ईच अदर, जिससे कोई भी एक जो है अपने पावर का अननेसेसरी यूज नहीं कर पाए. तो क्या कर रहे हैं ये लोग? कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन. कि आपका एक होल्ड है, इनका एक होल्ड रहता है दूसरे एग्जीक्यूटिव पे. कैसे होता है? क्वेश्चन होता है. जैसे आपने देखा होगा, वेर वी सी द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा on the television, we can see one particular opposition is going to ask the question, then the government जो होती है वो ruling party, they used to give the answer. It means they are accountable. तो questions ask करके they can keep the check on the government. जो ruling party है उस पे they can keep the eye, they can keep the check on them. So in such a manner they are going to play a very important role, and they can also pass the no confidence motion. नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना मतलब आपका जब ऐसा बिलीव हो जाए कि नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग दैट मच मेजॉरिटी, कि उसके साथ में जितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए टू फ्रेम द गवर्नमेंट, व्हेन इट इज़ नॉट विद द गवर्नमेंट, देन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज गोइंग टू बी पास्ड. कि आपकी गवर्नमेंट का में उतना आपका सपोर्ट नहीं है जिसके लिए आप एलिजिबल हों सरकार बनाने के. सो दैट इज कॉल्ड द नो कॉन्फिडेंस मोशन. देन इट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, बिकॉज दे आर हैविंग द प्लेंटी ऑफ मेंबर्स लोकसभा के. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई अमेंडमेंट होता है तो व्हेन इट इज गोइंग टू बी पास्ड बाय द मैक्सिमम मेंबर्स, ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट. जब मैक्सिमम मेंबर उसको पास कर देते हैं देन इट्स गोइंग टू बी created as a law. So amends executive constitution, approves proclamation of emergency. Suppose ऐसा कहा जाए ड्यू टू वार या कोई आपका ऐसा कोई इशू आ गया तो उसके अकॉर्डिंग अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, सो देयर मस्ट बी अप्रूवल बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. To declare emergency, it is must
that approval must be given by the members of Lok Sabha. Then elects president and vice president. ये देखा था हमने किस तरह से they are going to elect the president and vice president, और method क्या था हमारा, single transferable voting system. Then and remove judges of high court, और हाई कोर्ट के जजेस को क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं. देन एस्टैब्लिशेस कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसीडर देयर रिपोर्ट्स. कमिटी और कमीशन जो हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं और उनकी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं. तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ Lok Sabha, and ultimately this house is going to be very important. Why? Because it has got the majority and it is directly elected by the people. So let's see क्या है ये, makes laws on the matter of union list and the concurrent list. क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है किस पे, यूनियन एंड concurrent list पे. इंट्रोड्यूस एंड एनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल. क्या कर रहे हैं, मनी और नॉन मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस एंड एनैक्ट कर रहे हैं. Controls executive by asking questions, resolutions and motion and through no confidence motion. एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ के, उनको रेजोल्यूशन पास करके, मोशंस पास करके, एंड विद नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब उनको लगता है नाउ देयर इज नॉट द सफिशिएंट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, देन दे नीड टू प्रूव इट आउट. देन अमेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं. अप्रूव्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. अब इमरजेंसी जो है उसके प्रोक्लेमेशन को कि इमरजेंसी रियली हो या ना हो उसको अप्रूव करती है. देन इंपॉर्टेंट इलेक्शंस में देखें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रिमूव जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड एस्टैब्लिशेस द कमिटीज कमीशंस ऑन रिपोर्ट. कोई कमेटी बनानी हो, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनती हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, इश्यूज़ को लेकर, तो उसमें दे यूज टू डिस्कस अबाउट द मैटर्स, देन दे यूज टू पास द रेजोल्यूशन एंड हाउ टू एनेक्ट ऑन दैम. तो उन सबको लेकर दे यूज टू वर्क. सो इन सच अ मैनर वी कैन से कि दे आर लोकसभा इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर इन द पार्लियामेंट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. देखिए आप एक बार फिर वी विल हैव अ क्विक रीलुक ऑन दैट. देखिए क्या क्या कर रहा है. टू हाउसेज कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस. लोकसभा 545 मेंबर्स, राज्यसभा 250 मेंबर्स. Head of the Lok Sabha is called Speaker. Head of Rajya Sabha is called a Chairman. Chairman that is the Vice President of India. Now coming 250 में से कौन कौन से मेंबर कहाँ से होते हैं, 238 जो होते हैं that is elected by the state legislature and 12 are going to be nominated by the President. Then powers of Lok Sabha देखें, makes laws on the matter of union list and concurrent list. Introduce and enact money and non-money bills. Then controls or executive by asking questions, resolutions, motions and no confidence motion. Then amends constitution, approves proclamation of emergency, elects president and vice president and removes the judges of high court, establishes committees, commission and considers their reports. So these are the main functions of Lok Sabha. अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे चैप्टर में. First we will read about the Rajya Sabha and the functions of that, and when more very important question always comes in your exam कि why Lok Sabha is more important than the Rajya Sabha. लोक सभा राज्य सभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है. तो इस तरह से हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में लेजिस्लेचर के पर्टिकुलर वे का, हाउ द लेजिस्लेचर इज गोइंग टू बी फंक्शन इन इंडिया, और लोग उससे कैसे एसोसिएट हो रहे हैं, डायरेक्टली कैसे उससे जुड़े हुए हैं, वी विल स्टडी अबाउट इट. सो दैट्स ऑल फॉर डे. Do revise, don't forget to read from the book, and in the next part we are going to focus on Rajya Sabha and the main functions of Rajya Sabha. So do revise, and the questions whatever we are going to give you, you need to do in the your notebook of political science. जो बच्चे डेली पढ़ेंगे they will not have any issue. हम बहुत स्मॉल टॉपिक्स को ले रहे हैं, आप उसे हैंड टू हैंड बुक से पढ़ें, रिवाइज करें, थिंग्स विल बी वेरी ईजियर. क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अपर हाउस कौन सा है, लोकसभा और लोअर हाउस है, अपर है, या राज्यसभा अपर हाउस है, या 545 मेंबर किन में होते हैं, 250 मेंबर किस में होते हैं, लोकसभा हेड क्या कहलाता है, राज्यसभा के हेड को क्या कहते हैं, लोकसभा के पावर्स कौन कौन सी हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है. सो इन सच अ मैनर सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी देयर. सो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, यू हैव टू रीड द थिंग इन दैट मैनर. इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर you will be able to answer that. So that's all for today. Do revise and don't forget to read from the NCERT. Thank you so much.